Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tehseen Riaz Abbasi and I am going to deliver the lectures for the course Web Technologies and Programming. Course code is 536. Let's start with a brief introduction of myself. As I already told you about my name, I have done my BS from ComSets Institute of Information Technology, Islamabad, and I have done my Masters in Computer Science. My specialization is in Software Engineering from Zabis, Islamabad. My research area is Distributed Computing and Software Quality Engineering and Software Testing. Now I am going to tell you about a course introduction for Web Technologies and Programming. Before telling about course, I am going to mention about few policies in order to continue smoothly with this course. Number one is the key objective of the policies is to create a set of defined rules between teacher and students so that there will be consistency and professional learning environment will be maintained. The course decorum and quality policy of the university can also be achieved by following and adopting these policies. The prerequisite of this course is Fundamentals of Computer Programming. The title of course is Web Technologies and Programming. The course code is CSE 536. The course credit hour are of 3 hours and there will be 32 lectures for the course excluding the exams. The course will be evaluated as following. Number one is assignments. There will be 10% weightage for the assignments. 4 assignments will be conducted. There will be 10% for the quizzes and 4 quizzes will be conducted. Then there will be graded discussion topics, 5% of graded discussion topics, 4 discussion will be conducted. Then a sessional 1 exam that will be of 10%, then a sessional 2 exam that will be of 15%, and finally there will be a terminal exam of 50% that will include all course from start till end. Assignments. You have to submit all the assignment in soft form. There will not be any late submission of assignment, and the basic purpose of assignment is to create a research oriented writing, is to initiate a research oriented work, not to do cut, copy and paste culture. Plagiarism check will be performed on all the assignments that you will submit, and if the plagiarism will found be 20% or greater, then you will lose your marks accordingly. Understanding and preparing the assignments will make you well for the exam. So you need to focus on the assignments yourself. Now quizzes. Quizzes will be conceptual and quizzes require a sound preparation. You need to give ample amount of time to quizzes in order to get good marks. Quizzes will be objective based, MCQs type questions will be given, and quizzes have to be solved in the allocated time span. Exam. Exam will be 80% conceptual and 20% theoretical. You need to understand the concepts and you need to follow accordingly as per question in the exam. Objective. MCQs will be given in the objective. Subjective. Explanations, reasoning questions, descriptions, explanations are to be asked,
and all the assignment, quizzes, lecture notes are included in your exams. So usually exam required thorough studies and no choice is given in exam. How to get good marks? What are the key requirements for it? Attention for video lectures. How to get good marks? Requirements. Attention for video lectures. Do your homework and assignments independently. You don't need to depend on Google. You can use Google, but you don't need to depend on it. Things to avoid: cut, copy, paste culture and carelessness. Things to do: innovation, confidence, work attitude. Sense of maturity and continuous learning will leads to get better grades. These are very good links, students, I have shared with you. Whenever you need to do any assignment or you need to have some extra information about the course, you will first consider these links because these are very comprehensive, authentic, reliable and relevant link as per your course. So Wikipedia link is given, then basic links for the HTML and CSS are given, then an HTML5 link is given, a CSS detailed tutorial is given, then a JavaScript detailed tutorial is given, and then web development technologies are given, and in the end designs and usability principles are given. Textbook, PHP and MySQL web development, Welling L and Thompson L, 5th edition the books are, and year of publication are 2015, publishers are Edison Wesley. The reference book, multi-device web development with HTML5, CSS3 and JavaScript. These are again 2013 year publication. And the last one is from the Pressman, 2008 year publication, Web Engineering, a Practitioner's Approach. And then now let's start about introduction to the course. Let's start about introduction to the course, Web Technologies and Programming, Introduction to Web Technologies. First of all, we need to know about the course. What is web? What are web applications? The case for web engineering, categories of web applications, characteristics of web application. So, introduction to the course. This course basically aims on methods and techniques used in web-based application development. So जब भी हम लोग किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को बनाएंगे, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन और डेवलप करेंगे, तो हमें उसके लिए दो चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है, मेथड्स के बारे में और डेवलपमेंट टेक्निक्स के बारे में. इस कोर्स में उन मेथड्स और इन टेक्निक्स दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल वेब एप्लीकेशंस कैसे डिज़ाइन की जाती हैं, कैसे डेवलप की जाती हैं और कैसे डिप्लॉय की जाती हैं, इसके बारे में हम इस कोर्स में देखेंगे. नाउ दिस मॉड्यूल इंक्लूड्स द फॉलोइंग टॉपिक्स, मीन्स मेथड्स एंड टेक्निक्स. अब हम मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में देखेंगे कि मेथड्स और टेक्निक्स क्या क्या होंगी इस कोर्स में. वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोचेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जिस चीज़ के बारे में जानना है, दैट इज प्रोसेस मॉडल्स. व्हाट इज अ प्रोसेस मॉडल? इट इज अ सेट ऑफ activities whose
गोल इज द डेवलपमेंट और एवेल्युएशन ऑफ सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे हम डेवलप करते हैं और वक्त के साथ साथ उस सॉफ्टवेयर की नई वर्जन आते हैं, उसमें नई चेंजेस आती हैं, वो इन्हांस किया जाता है। इन सब को करने के लिए एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, सीरीज ऑफ एक्शंस हैं, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हैं, वो एक प्रोसेस मॉडल का पार्ट होती है। सो द जनरल एक्टिविटीज इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस आर, वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हर सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1 इज स्पेसिफिकेशन, इट इज कंसर्न विद द रिक्वायरमेंट। Number 2 is the development. It is concerned with the programming. Number 3 is the validation. It is concerned with the testing. And number 4 is the evaluation. It is concerned with the changes, updated changes and maintenance part. This diagram is a very simple diagram that shows about a simplified form of a process. First of all, if you look in it, so feasibility and planning is the starting phase. feasibility परफॉर्म की जाती है, एक एनालिसिस किया जाता है कि क्या जो सॉफ्टवेयर, क्या जो प्रोडक्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है डेवलप करना या नहीं है, और उसकी प्लानिंग की जाती है कि वो कैसे पॉसिबल होगी आपके अवेलेबल टाइम, आपकी अवेलेबल कॉस्ट, अवेलेबल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स के मुताबिक। सो फिजिबिलिटी में हम इस बात का यकीन दहानी करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर जो हम बनाने जा रहे हैं वो हमारे अवेलेबल टाइम, कॉस्ट और रिसोर्सेज के मुताबिक बन जाएगा या नहीं। सो वंस द फिजिबिलिटी इज गेट फाइनलाइज्ड, गेट अप्रूव्ड, we will move towards the next stage, that is a requirement stage. So requirement stage के अंदर हम सबसे पहले requirements gather करने के लिए different techniques लगाते हैं। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में पढ़ा होगा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास इंटरव्यू की टेक्निक है, हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन है, हमारे पास जो है वो कंपटीटर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम एनालाइज करके रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। हमारी प्रोजेक्ट के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनसे हम मीटिंग्स करते हैं, उनके रिव्यूज एंड उनसे रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं कि वो इसमें क्या फीचर चाहते हैं। सो ये रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करते हैं, फिर इन रिक्वायरमेंट्स को सिस्टम एनालिस्ट, रिक्वायरमेंट एनालिस्ट एनालाइज करते हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स को इनमें से मॉडिफाई करते हैं, कुछ को डिलीट कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निकल रिसोर्सेज एंड बजट। सो हमारे पास एक सेट ऑफ एग्रीड रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जिनको हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिख देते हैं। उस डॉक्यूमेंट को हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। सो हमारे पास एग्रीड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आ जाती हैं। रिक्वायरमेंट्स के बाद सेकंड स्टेप पे हम डिजाइन फेज पे जाते हैं। डिजाइन पे हम लोग दो कॉन्टेक्स्ट में डिजाइन फेज पे डिसीजन लेते हैं। एक डिसीजन जो होता है हमारा वो इंटरफेस का डिसीजन होता है कि हमारे जो इंटरफेसेस होंगे वो इंटरफेस की टाइप्स क्या होंगी। कमांड लाइन इंटरफेस होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम इंटरफेस कम्युनिकेशन करवाएंगे, और उस स्क्रीन इंटरफेस के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कौन से विजुअल ऑब्जेक्ट्स होंगे, कलर स्कीमिंग क्या होंगी, कंटेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट की लोकेशंस कहां पे होगी। एंड सेकंड, हम अपनी प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के अगेंस्ट डिजाइन को देखते हैं। इफ इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी तो आप क्लास डायग्राम बनाएंगे और क्लास डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपकी सीक्वेंस डायग्राम होगी। एंड इफ यू आर फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सो उसके अगेंस्ट आपकी डाटा फ्लो डायग्राम्स बनती हैं। उसके लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 डेप्थ बताएंगे आपको। सो हम डिजाइन लेवल पे जाके डेवलपर को डिसाइड करवा देते हैं कि मॉडलिंग कैसे हुई, और वो जो हमने डिजाइन लेवल पे मॉडलिंग करवाई वो हम डेवलपर को
बता देते हैं और डेवलपर उसके अगेंस्ट अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेगा. दैट इज आवर नेक्स्ट स्टेज. सो अकॉर्डिंग टू द डिजाइन फेज डेवलपर अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, कोडिंग करते हैं, अपने फंक्शंस लिखते हैं, अपने एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं, अपनी लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते हैं. एंड वंस द डेवलपमेंट phase is over, then it is deployed for the client and operation and maintenance phase is started. So आपके क्लाइंट, आपका कस्टमर, आपके यूजर्स आपकी एप्लीकेशन में बग्स रिपोर्ट करते हैं, उसमें डिफरेंट नए सेट ऑफ फीचर्स उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहते हैं, वो ऐड किए जाते हैं और ये सारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज का पार्ट होती है. So now the modules of product development. Number 1 is requirement engineering. Number 2 is web application modeling. Number 3 is web application architecture. Number 4 is technologies and tools. And number 5th is testing web application. And number 6th is maintenance. So ये वो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें अडॉप्ट करनी होती हैं. ये सीरीज ऑफ स्टेप, इनके डिफाइंड प्रिंसिपल्स, इनकी डिफाइंड रूल्स को हम फॉलो करते हैं. सो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट एक फाइनल शेप ऑफ सॉफ्टवेयर होती है जो हमारे रिक्वायर्ड बजट, रिक्वायर्ड टाइमलाइन एंड रिक्वायर्ड फंक्शन रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डेवलप हो जाती है. और इसमें एक और जो एस्पेक्ट हमें कंसिडर करना है, दैट इज क्वालिटी एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटी. सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को भी हमने इसके अंदर कंसिडर करना है. नाउ लेट्स सी अ वेरी सिंपल डायग्राम फॉर अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन. देयर इज अ यूजर दैट इज यूजिंग हिज पीसी and using a web browser, for example Firefox, for example Chrome, for example Opera. These are the name of web browsers. So using a web browser, a user sends a request. Let's suppose a user has opened a web browser and request a URL, a address, web address that is google.com. So that request is sent to the web browser and then web browser interprets the user selection and make request from appropriate server. Web browser यूजर की रिक्वेस्ट को देखते हुए जो भी रिक्वेस्ट की गई, ये google.com के वेब पेज को ओपन करने की रिक्वेस्ट थी हमारे एग्जांपल में, सो वो उस रेलिवेंट सर्वर के ऊपर वो रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर देगा, सेंड कर देगा. सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखेगा और प्रोसेस करेगा उस रिक्वेस्ट को वेब ब्राउजर की. सर्वर वो रिक्वेस्टेड फाइल जो ब्राउजर ने रिक्वेस्ट की उसको ब्राउजर के लिए इंटरप्रेट करेगा और उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका रिस्पॉन्स देगा वापस यूजर को थ्रू ब्राउजर. सो यूजर को अपनी रिक्वेस्टेड फाइल ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी. These are the basic web application technologies we need to understand and we will learn during the course. Number 1 is hypertext markup language, usually called in short form as HTML. And the second one is cascading style sheets, CSS. These are basically used for designing in the web applications. Then with respect to the client side, there is a scripting language that is JavaScript. And then with respect to the server side, there is a language that is PHP. And then the database that we will consider will be MySQL database. Web engineering. What is web engineering? Software engineering is an engineering discipline that is concerned with all aspects of software production. So किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें सारे एस्पेक्ट्स को देखना होता है.
लाइक रिक्वायरमेंट का एस्पेक्ट है, डिज़ाइन का एस्पेक्ट है हमारे पास, डेवलपमेंट एस्पेक्ट है हमारे पास, टेस्टिंग एस्पेक्ट है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एस्पेक्ट है। ये सारे एस्पेक्ट्स हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में देखे। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन तमाम एस्पेक्ट्स के साथ कंसर्न रखती है, इन तमाम एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना और एक सिस्टमैटिक अप्रोच से इनको एग्जीक्यूट करवाना इज कंसर्न विद द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। And then software engineering is the science and art of building significant software system. If you follow software engineering, the result will be good software that will have quality aspects. So सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, एस्पेक्ट्स को अडॉप्ट करते हुए, फॉलो करते हुए, अप्लाई करते हुए जब का रिजल्ट होगा वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, यूजर सेटिस्फाइड होगा, उसकी नीड के मुताबिक होगा, वो यूजर फ्रेंडली होगा, कन्वीनियंट होगा यूजर को, वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनेगा। और ऐसे सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी जो बात होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अप्लाई करने से कि वो ऑन टाइम बनेगा, एलोकेटेड टाइम जो प्लान टाइम था उसके मुताबिक होगा, ऑन बजट बनेगा और उसके अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की कन्फॉर्मेंस होगी, रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेशली द परफॉर्मेंस फैक्टर उसके अंदर अच्छी तरह अडॉप्ट किया जाएगा। सो परफॉर्मेंस फैक्टर उसके अंदर अप्लाई होगा और वो राइट फंक्शनैलिटी रिलायबल मेथड में परफॉर्म कर रहा होगा। नाउ व्हाट इज web engineering? Web engineering is the study of the processes used to create high quality web based application. So जब भी हम एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, वेब बेस्ड प्रोडक्ट को क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोसेस को स्टडी करना है जिसके अंदर वो तमाम एस्पेक्ट्स मौजूद हों जो एक हाई क्वालिटी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को रिजल्ट करे। और ऐसे प्रोसेस को स्टडी करना वेब इंजीनियरिंग कहलाता है। सो वेब इंजीनियरिंग तमाम ऐसे प्रिंसिपल्स और ऐसे प्रिंसिपल्स की मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई होती हैं उन पे फोकस करती है। सो वेब इंजीनियरिंग पे की फोकस मेजर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रिंसिपल्स दैट रिजल्ट्स अ गुड वेब बेस्ड एप्लीकेशन एज पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। सो वेब इंजीनियरिंग जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो प्रोसेस हैं उन्हीं को एक्सटेंड कर रही है बट फॉर दी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। वेब टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर effective communication among different users and devices on a computer network. So what is web technology now? Different platforms, यहाँ पे प्लेटफॉर्म से मुराद फॉर द टाइम बीइंग सॉफ्टवेयर फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूँ। लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, एक आपके पास विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक आपके पास स्मार्टफोन पे एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को, सर्च इंजन्स को। फॉर एग्जांपल google.com एक सर्च इंजन है, yahoo.com एक सर्च इंजन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस है आपके पास, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, twitter.com एप्लीकेशन है आपके पास, facebook.com आपके पास एक एप्लीकेशन है। सो इन एप्लीकेशंस के दरमियान डिफरेंट तरह के यूजर्स जो डाइवर्स कल्चर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट एज फैक्टर है उनकी, डिफरेंट जेंडर्स हैं उनकी, डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। सो ये कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। सो वेब टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिफरेंट हार्डवेयर्स and then accordingly for the different types of users as well. So the application of systematic and quantifiable approaches for the cost effective analysis, number 1 requirement analysis की बात हो रही है, 2 design, implementation, testing, operation and maintenance of high quality web applications. सो तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर प्रोसेस के स्टेप्स
जब एक सिस्टमैटिक एक तरीके से एक सिस्टमैटिक अप्रोच से स्टेप बाय स्टेप वन आफ्टर अनदर एंड क्वांटिफाइबल कि वी कैन जज देम, वी कैन क्वांटिफाई कि दिस स्टेप is pretty good, this step is not well giving the required output, and this step is not up to the standard of the client, this step is not as per to the design standards. So quantifiable होना चाहिए. And for the highly recommended quality web based application, web technology is the establishment and use of mechanism that make it possible for different computers to communicate and share resources. So different तरह के जो हमारे users हैं, उन users के दरमियान हम ये मुमकिन बना देते हैं कि वो communicate कर सकें और different resources को, files को, images को share कर सकें, videos को share कर सकें आपस में with the help of web technology. Web application. In order to understand the concept of web application, we need to understand few things. Number one is World Wide Web. World Wide Web is a massive and paramount influence on our lives, on all the industries, in education field, in economic field, in banking field, in airline industry, in health and care, in entertainment field, everywhere. Why? Because using www globally people can communicate with each other. So it's a global and permanent influence for our lives, and it's a very comfortable and a uniform access in order to communicate and share resources. So www World Wide Web is basically, when started, it is started as a medium of information exchange. With the passage of time, it shaped towards application medium, and it is an application which supports interactive collaboration with the people for the users, and extensive data services are provided. Services include uploading of files, downloading of files, sharing of files. So what are the distinguished factors for web applications? How it is used, technologies and standards for the web development. We will study this in our course. So a web application, any web-based system, web-based software, first of all we'll utilize W3C, that is World Wide Web Consortium standard and technologies in order to deliver a web specific resource to the client through browser. So जितने भी हमारे clients हैं, users हैं, जो हमारी किसी भी web based application को use करते हैं, for example हमारे पास facebook.com एक social media based web application है, उसको use करना चाह रहे हैं, so ऐसी application utilize करती है W3 schools के सारे principles को, standards को और W3 schools की technologies को, so that required specific resources के मुताबिक यूजर को, क्लाइंट को बेस्ट पॉसिबल मैनर में वो रिस्पॉन्स डिलीवर किया जाए. सो टेक्नोलॉजी प्लस इंटरेक्शन ऑफ द यूजर is the key thing that needs to be considered. The case of web engineering. Web application development on the web remains largely ad hoc. Ad hoc means random. So normally when we are developing web-based application, unplanned होती हैं हमारे पास, one time event होता है, with the passage of time evolve हो रही होती हैं, changes आ रही होती हैं, and it's an individual experience as well कि एक individual web-based को बहुत user friendly देख रहा है, एक दूसरा यूजर है वो उसको फ्रस्ट्रेशन की नहा से देख रहा है. सो ये एप्लीकेशन के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है यूजर्स की. सो रीजन ये है कि बहुत स्मॉल लेवल पे
ये अप्रोक्सीमेटली ना होने के बराबर डॉक्यूमेंटेशन है, कोडिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन। सो शॉर्ट टर्म सेविंग्स है एंड विच लीड्स टू लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। वक्ती तौर पे टाइम बीइंग पे आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं ऐसा वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जब आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जब आप एप्लीकेशन का इन्हांस वर्जन करना चाह रहे हैं, आप उसकी लाइफ स्पैन एक्सटेंड करना चाह रहे हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव द वेब एप्लीकेशन, सो पॉसिबल नहीं होगा। उस टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। कैसी प्रॉब्लम्स होंगी आपके पास? परफॉर्मेंस लैग कर रही होगी बहुत ज़्यादा, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा, राइट इनपुट्स पे वैलिड आउटपुट्स नहीं आ रही होंगी, यूजर फ्रेंडलीनेस इंटरफेसेस नहीं होंगे आपके पास, एंड एज सून एज द यूजर्स गेट्स लार्ज इन नंबर्स एंड डाटा गेट्स लार्ज इन नंबर, सो रिस्पॉन्स सही नहीं आएगा। फॉर दैट यू नीड टू गेट स्केलेबिलिटी, और स्केलेबिलिटी भी आप बायॉन लिमिट्स नहीं कर सकते, तो ये एक और आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी स्केलेबिलिटी की। एंड डेफिनेटली ऑल दिस इफेक्ट कॉस्ट एज वेल। Root causes of poor design. Development as an authoring activity. Number 1 कि why we have a poor design. पहली रीजन है कि हम जब डेवलप कर रहे होते हैं तो जैसे एक ऑथर लिख रहा होता है वन गो में, एक राइटर सोचता है कि मैं वन गो में अपना एक नॉवल लिखूंगा, सो वो एक वन गो में लिख लेता है। तो हम डेवलपमेंट को भी एक ऐसी एक्टिविटी ट्रीट कर रहे होते हैं कि हम वन गो में बैठेंगे और सारे इन्वायरमेंट में सारा कोड लिख देंगे, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डेफिनेटली देयर नीड्स टू बी सम एरर, सम प्रॉब्लम, सम इश्यूज वी नीड टू गेट इट while programming, while coding. कम्युनिकेशन गैप, रिक्वायरमेंट इंजीनियर आपको जो रिक्वायरमेंट्स बता रहा होता है, डिजाइनर आपकी उन रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। रिक्वायरमेंट डिजाइनर्स से जो कम्युनिकेट की जाती हैं वही रिक्वायरमेंट्स जब डेवलपमेंट टीम के पास आती हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कंसिडर किया जा रहा है बिकॉज प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं की गई होती हैं आपके साथ। सो इस वजह से डेवलपमेंट को एक इजीली एक सिंपल फैक्टर कंसिडर किया जाता है और इस वजह से प्रॉब्लम होती है। फिर टेक्नोलॉजीज जो हैं वो प्रॉपरली एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज अप्लाई नहीं की जा रही होती। जो राइट टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल एक टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर इन्हांसमेंट में आपको प्रॉब्लम करेगी, आप ओल्ड टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के वर्जन्स नहीं यूज कर रहे, ऐसे सॉफ्टवेयर के वर्जन्स नहीं यूज कर रहे जो आपके लेटेस्ट हार्डवेयर के साथ या क्लाइंट के हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल हो। सो ये प्रॉब्लम्स आपके पास आ रहे हैं। सो व्हाई द applications fail, while software products, software projects fail, what are the key reasons? 84% projects fail because they fail to meet the deadlines of business objective. बिजनेस की जो नीड होती हैं, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको फिलफिल करने से वो फेल हो जाती है। रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, कम्युनिकेट नहीं किया जाता। 79% प्रोजेक्ट स्केड्यूल डिलेज। वाई? टीम्स को टाइम स्पेन जो एलोकेट किया जाता है वो रियलिस्टिक टाइम स्पेन एलोकेट नहीं किया जाता। देन 63% बजट ओवररन। नॉर्मली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर को 2 मिलियन में बना लेंगे, जब आप एक्चुअली उसको डेवलप कर रहे होते हैं तो शायद वो 4 मिलियन 5 मिलियन नीड कर रहा हो। So you don't have so much cost at that time. So budget overrun हो गया and the product is going to fail. And then functionality. Functionality communicates नहीं होती requirements तो properly बनाई नहीं जाती। Change of requirement एक another factor है, बहुत ज़्यादा requirements change कर रहे होते हैं stakeholder और वो continuous change adopt नहीं हो रही होती। वर्जनिंग नहीं की जा रही होती रिक्वायरमेंट्स में, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड रिक्वायरमेंट वैलिडेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा होता। So due to these reasons 53% projects fail. So what are the solutions for these problems? The solution is clearly define goals and objective of your software in a systematic way, in phase development, यानी कि set of activities आपने follow करनी है और proper careful feasibility planning आपने करनी है and iterative step by step आप लेके चलें phase में
और कंटिन्यूसली आप एक फेज जब कंप्लीट हो उसको ऑडिट करें, उसको मॉनिटर करें, उसको चेक करें कि उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज, सो दैट आप टाइम टू टाइम जो भी इश्यूज हैं, जो भी एरर्स हैं, वो रिमूव कर लें. नाउ वी आर गोइंग टू सी कैटेगरीज ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन. These are the major categories of web-based application. Number 1 is document-centric web. Number 2 is interactive and transactional web application. Number 3 is workflow-based web application. Number 4 is collaborative and social web application. Number 5 is portal-oriented web application. And number 6 is ubiquitous web application. We are going to see each of category one by one. Document centric website. These are the key originator of web applications. जो भी आज हमारे पास वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी जो ओरिजिन है, उनका जो स्टार्ट है, उनकी जो बेस है, वो डॉक्यूमेंट सेंट्रिक वेबसाइट थी. डॉक्यूमेंट सेंट्रिक जो वेबसाइट्स हैं वो हमारे पास स्टैटिक HTML डॉक्यूमेंट्स, HTML पेजेस होते हैं हमारे पास. स्टैटिक मीन्स कि उनके अंदर हम टाइम टू टाइम चेंज नहीं करते, बल्कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उनका कंटेंट, उनका डिजाइन सेम रहता है. और अगर उनको हमें चेंज करना पड़ रहा है, जो बहुत रेयर चेंज होती है, वो फ्रीक्वेंट चेंज नहीं है, सो वो चेंज हम मैनुअली कर रहे होते हैं, एक एक पेज की अलग अलग, सेंट्रल नहीं होती. एडवांटेजेस, प्रॉन्स, बेनिफिट्स क्या है डॉक्यूमेंट सेंट्रिक वेब के? सिंपल स्टैटिक पेजेस है, कंट्रोलिंग आसान है, स्टेबल है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑफ लाइफ एप्लीकेशन का, बहुत लॉन्ग टाइम ये ऐसी साइट चलेगी. रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम है, बिकॉज डायनेमिक डेटा नहीं है, बैक पे कोई ऐसा डेटा बेस्ड सर्वर्स नहीं होते, सो रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा होता है. प्रॉब्लम्स क्या है? अगर आपको चेंज करनी है, सो आपको मैनेजमेंट कॉस्ट डिलीवर करनी पड़ेगी. उसके अंदर मॉडिफिकेशन के लिए, उसके अंदर चेंजेस के लिए, फ्रीक्वेंट अपडेट्स अगर आने कर रहे हैं आप लोग उसके अंदर, और लार्ज लेवल ऑफ कलेक्शन है, ज्यादा वेब डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी. और इनकंसिस्टेंसी आएगी बिटवीन द कंटेंट, बिटवीन द डिजाइन, बिटवीन द स्ट्रक्चर, और रिडंडेंट, डुप्लीकेट, रेप्लिकेट डाटा हुआ होगा. सो स्टैटिक होम पेज जो है आपके पास, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट सेंट्रिक जो वेब एप्लीकेशंस हैं, इसकी एग्जांपल है. द सेकंड कैटेगरी इज interactive and transactional. So not only read content but also allow content modification. So इसमें आप content को, actual जो content present किया जा रहा है उसकी बात हो रही है, वो change कर सकते हैं. और इस content change के लिए आपको HTML forms को introduce किया गया. Using HTML form आप कंटेंट को चेंज कर सकते हैं. अगेन ये भी सिंपल इंटरेक्टिविटी विद द यूजर कंसिडर होती है, और इसमें आप डायनेमिक पेज क्रिएट कर सकते हैं. एंड वेब पेजेस एंड लिंक्स टू अदर पेजेस आर जनरेटेड यूजिंग द यूजर इनपुट. सो यूजर एक इनपुट के ऊपर उसको हम रेफर कर देंगे, लिंक्स कर देंगे दूसरे पेज के ऊपर, और दूसरे लिंक के ऊपर जो यूजर की रिक्वायरमेंट है. सो कंटेंट अपडेट किस किस्म का होता है? ट्रांजैक्शनल कंटेंट अपडेट हो सकता है. फॉर एग्जांपल एक बैंक है, उस बैंक में एक यूजर के अकाउंट है, उसमें सपोज 1 मिलियन है, उसमें 50,000 उसने एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर ली. अब उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हमने अपडेट करना है. सो ये एक अपडेट आ गई, डेटाबेस के साथ लिंक्ड होगा, डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी हमारी, और जो भी हमारे बैकएंड पे डेटाबेस के अंदर डाटा पड़ा होगा उसमें से कंटेंट आ रहा होगा. बट ये कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करेगा. मैनुअली आपको कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको कैटर करना पड़ेगा. एग्जाम्पल्स न्यूज की साइट्स है हमारे पास, न्यूज की
फॉर एग्जांपल जंग की साइट है jung.com.pk, उसमें कंटिन्यूसली डाटा अपडेट हो रहा है। सो वो हमारे पास इंटरेक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन है। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है, एक एयरलाइन है, उसमें से आपने टिकट बुक करना है ऑनलाइन, सो उसके लिए आपका डाटा चेंज हो रहा है, दैट इज अनदर एग्जांपल। एंड बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए आप कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, बैलेंस चेक कर रहे हैं, सो ये इंटरेक्टिव एप्लीकेशन है। थर्ड कैटेगरी, द थर्ड कैटेगरी इज वर्कफ्लो बेस्ड एप्लीकेशन, and these applications are designed to handle business process across departments, organizations and enterprises. So एक ही लार्ज लेवल ऑर्गेनाइजेशंस में नॉर्मली हम इसको अप्लाई करते हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके, उनके दरमियान हमने बिजनेस प्रोसेस को कैटर करना है। सो हम वर्क फ्लो बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। वर्क फ्लो मीन्स एक सीक्वेंस में, पहले फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट 1 है, उससे एक एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, फिर डिपार्टमेंट 2 की तरफ जाएगी, डिपार्टमेंट 3 की तरफ चलेगी। सो एक सीरीज ऑफ स्टेप है जो ऑटोमेटिकली फॉलो की जाती है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस लॉजिक जो स्ट्रक्चर डिफाइन करिए। लेट्स सपोज आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है, तो सबसे पहले वो एक एडमिशन का फॉर्म साइन अप करेगा, एक एडमिशन के लिए अपने सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब उसका मेरिट के बुनियाद पर एडमिशन होगा, फिर वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फॉलो हो जाएगा एज पर फी, वो अपनी फी सबमिट करवाएगा, सो उसको अकाउंट डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर किया जाएगा। सो हमारे पास लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस है, एक यूजर एक एडमिशन लेता है एक यूनिवर्सिटी के अंदर। सो उसका सबसे पहले एडमिशन होता है, एडमिशन में उसके सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, और अगर मेरिट फार्मूले के तहत उसका एडमिशन मिल रहा है तो उसके बाद उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर उसकी फीस क्लियरेंस के बाद उसको रेलिवेंट एक रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट किया जाएगा। अब जो भी उसका कंसर्न डिपार्टमेंट है, एक सेकंड डिपार्टमेंट, लेट्स सपोज वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था, तो उसको उसके रेलिवेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा सो दैट वो अपने रेलिवेंट कोर्सेज को रजिस्टर कर सके, उनके आउटलाइंस को ले सके, उनके टाइम टेबल को देख सके। एंड इसी तरह एक नेक्स्ट डिपार्टमेंट, तो एक फ्लो बन रहा है। इस तरह की वर्क फ्लो बेस्ड एप्लीकेशंस हमारी एक तीसरी कैटेगरी है वेब बेस्ड एप्लीकेशन की। कॉम्प्लेक्सिटी इसमें काफी ज्यादा होती है, मल्टीपल एंटिटीज होती हैं जिनको मैनेज करना पड़ेगा, और नॉर्मली बिजनेस टू बिजनेस जो एप्लीकेशंस होती हैं, ई गवर्नमेंट की जो एप्लीकेशंस होती हैं, वो हमारे पास इस कैटेगरी में लाई करती हैं। फोर्थ कैटेगरी ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन इंक्लूड्स कोलैबोरेटिव एंड सोशल वेब। अनस्ट्रक्चर्ड होती है, फ्लो नॉर्मली नहीं होता इस तरह, कोऑपरेटिव वर्क एनवायरनमेंट से, और इंफॉर्मेशन हमारे पास जो भी शेयर की जाती है उसके लिए एक स्पेस को पहले क्रिएट किया जाता है, उस स्पेस को फिर एडिट करवाया जाता है, और फिर उस स्पेस को शेयर करवाया जाएगा। सो अगेन पहले एक वर्क स्पेस को क्रिएट करना, फिर उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन अलाउ करना, एंड देन मैनेज करना। इसके अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत मेजर फैक्टर है, बैकबोन है। सोशल नेटवर्क्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल विकीज, फॉर एग्जांपल फेसबुक, फॉर एग्जांपल ट्विटर, एंड ऐसी जितनी भी हमारे पास वेब एप्लीकेशंस हैं वो ट्रेडिशनली www से रिकॉग्नाइज नहीं होती, वो W3 को अनरिकॉग्नाइज कर रही हैं। सो कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को, कल्चर का जो लोगों का कल्चर है उसके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए ऐसी सोशल वेब एप्लीकेशन किसी एक कल्चर के लिए या डाइवर्स पीपल के लिए बनाई जाती है। ऑलरेडी मैंने बताया आपको facebook.com, ट्विटर इनको मद्देनजर रखती हैं। द नेक्स्ट एप्लीकेशन कैटेगरी इज वेब पोर्टल्स। स्पेसिफिकली डिजाइन की जाती हैं किस पर्पस के लिए कि डाइवर्स रिसोर्सेज को एक यूनिफॉर्म वे से, एक स्टैंडर्ड वे से प्रेजेंट की जा सके। ईच इंफॉर्मेशन सोर्स गेट इट्स डेडिकेटेड एरिया, उसको अपना अपना स्पेसिफिक जो लोकेशन चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होती है, वो एलोकेट की जाती है।
नॉर्मली पोर्टल्स ऐसी बेस्ट एग्जांपल्स हैं, मार्केट प्लेस की पोर्टल्स है, कम्युनिटी पोर्टल्स है हमारे पास, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन पोर्टल्स है हमारे पास, बिजनेस पोर्टल्स है हमारे पास, जिन पे रेलिवेंट वेब एप्लीकेशंस है। एंड द लास्ट कैटेगरी इज यूबिक्वियस वेब एप्लीकेशन। यूबिक्वियस मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। सो कस्टमाइज्ड सर्विस, कस्टमाइज्ड मीन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, उसको हम चेंज कर देते हैं। These are divided and these are delivered then anywhere using multiple devices. And still the ubiquitous web applications is an emerging area and a lot of work is going on. So if we do consider this diagram, that is categories of web application development history and complexity, these are the major categories. Doc-centric is the first one, that is the document centric, static page होंगे, then interactive, इसमें dynamic है आपके पास, then transactional, इसमें आप database से connectivity भी करवा रहे हैं, then workflow, इसमें step by step आप organization में follow करवाते हैं, collaborative, two way, user भी interact कर रहा है, then social web, user की data sharing हो रही है इसके अंदर, and portal oriented है हमारे पास then applications, and ubiquitous, that is present everywhere in the last one. So जो हमारे पास कैटेगरी इंक्रीज हो रही है, हमारी एप्लीकेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। So now let's consider the characteristics of web applications. एक ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन कैसे डिफरेंस कर रही है एक इन कैटेगरीज में से जो हमने रिसेंटली स्टडी की। So number one is product based. Either it's a web application that is a product, a software product. Secondly, इसकी यूटिलाइजेशन कितनी है, कितनी बेनिफिशियल है ये ऑडियंस के लिए। एंड थर्ड, डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव में कॉस्ट एंड टाइम कितना लग रहा है उस लिहाज से, और किन टूल्स में बन रही है उस लिहाज से कितनी डिफरेंट है, वी नीड टू कंसिडर दैट। सो प्रोडक्ट बेस्ड कैटेगरीज, नंबर वन, प्रोडक्ट रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स we need to constitute the building blocks of web application. So ये building blocks हैं, बिल्कुल बैकबोन है किसी भी एप्लीकेशन को जब आपने डिफरेंशिएट करवाना होगा। डॉक्यूमेंट कैरेक्टर एंड मल्टीमीडिया हमें देखना होगा किस किस्म के अंदर इसके अंदर कंटेंट आ रहा है, कैरेक्टर्स क्या आ रहे हैं, और इसके अंदर लेटेस्ट डाटा होना चाहिए, एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, रिलायबल डाटा होना चाहिए, और कंसिस्टेंट हो थ्रू आउट द वेब एप्लीकेशन। नेविगेशनल स्ट्रक्चर इसके अंदर हाइपर टेक्स्ट की वो कंप्लीटली डिफाइन होना चाहिए, और इसके अंदर लिनियरिटी नहीं होती, नेविगेशंस में लिनियरिटी नहीं होगी। तो प्रॉब्लम क्या होगी आपके पास कि कॉग्निटिव ओवरलोड होगा, एक तो डिसओरिएंटेशन भी होगी। डिसओरिएंटेशन मींस कि आपकी प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, स्टेप एंड फ्लो नहीं होगा। एंड कॉग्निटिव ओवरलोड मीन यूजर की मेमोरी पे लोड होगा, यूजर को काफी चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी, मेमोराइज करनी पड़ेंगी। एंड यूजर इंटरफेस की जो इसके अंदर प्रेजेंटेशन है उसकी अपीयरेंस को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना पड़ेगा, उसको सेल्फ डिस्क्राइबिंग बनाना पड़ेगा, सो दैट यूजर की मेमोरी पे जो कॉग्निटिव वर्कलोड है वो रिलीज किया जाए, वो मिनिमाइज किया जाए, वो लेस किया जाए। द सेकेंड कैटेगरी इज यूजेज बेस्ड characteristics. This is another much greater diversity compared to traditional non-web applications. Users vary in different aspects in hardware. Multiple hardware हो सकता है यूजर के पास, different type of operating systems हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, यूजर की लोकेशन, फिजिकल लोकेशन जैसे वो यूज कर रहा है, कंट्री सिटी वेरी कर सकता है, कल्चरल बैकग्राउंड, जेंडर ये वेरी कर सकता है। So this is the second category we need to know for the differentiation of web-based application. So social context, उसकी scalability कितनी है, and कितने diverse, heterogeneous में कितने diverse groups हैं जो users के पास आएंगे और उनको users को देखना है। Application designers को consider करना है। Usage-based characteristics. This is the another characteristics, and that we need to do technical content.
नेटवर्क जिसके ऊपर वो एप्लीकेशन शेयर होनी है और वो जो डिवाइसेस जिसके जरिए वो शेयर होनी है, उनके अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस किस हद तक सपोर्टेड है, नेटवर्क की बैंडविड्थ, नेटवर्क का डेटा रेट ऑफ ट्रांसफर, दैट इज नीड टू बी कंसिडर्ड. एंड एप्लीकेशन लोकल एक कंट्री तक, एक एरिया तक सिर्फ शेयर होगी या ग्लोबल अक्रॉस द वर्ल्ड शेयर होगी. तो उसका नेचुरल कॉन्टेक्स्ट देखना एंड कितने टाइम में शेयर होगी, जस्ट 1 आवर के लिए है, 2 आवर के लिए है, 24 आवर के लिए है, कितने टाइम के लिए शेयर हो रही है, दैट इज ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड. देन द डेवलपमेंट टीम, दिस इज द थर्ड फैक्टर that need to be considered for differentiation, that is multidisciplinary. Printing, publishing, software development, marketing and computing, art and technology. So हमारे पास different teams हैं, हमारे पास requirement की अपनी टीम है, design and development की एक और टीम है हमारे पास, marketing की एक अपनी टीम है, testing की अपनी टीम है. So उन teams के अंदर कितनी dimensions हैं, कितने डिफरेंट तरह के टूल्स हैं, उनकी कोलैबोरेशन में कितने गैप्स हैं या कम्युनिकेशन में कितने गैप्स हैं, वी नीड टू दैट. सो लैक ऑफ कंट्रोल ऑन द क्लाइंट साइड, यूजर की साइड जहां पे एप्लीकेशन में डिप्लॉय होना है उसके बारे पर हमें कितनी एक्सेस है, उसके ऊपर हम कितनी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कर सकते हैं आफ्टर डिप्लॉयमेंट, वी नीड टू नो दैट. इंटीग्रेशन, एग्जिस्टिंग सिस्टम अगर आपका कोई मौजूद है, एक एग्जिस्ट सिस्टम है जो स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में नहीं बना हुआ, एक लेगेसी सिस्टम होता है ऐसा वो, और अगर हम एक वेब सर्विसेज के जरिए, वेब सर्विसेज को हम डिटेल में एंड में देखेंगे, वेब सर्विसेज बेसिकली आर फंक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू प्रोवाइड कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज फॉर द यूजर. सो वेब सर्विसेज के साथ हमारी इंटीग्रेशन हमारी होनी है और इनके दरमियान राइट इंटरेक्शन हो सके, करेक्ट इंटरेक्शन हो सके और गारंटीड क्वालिटी ऑफ सर्विस हो सके हमारे पास, ये हमें देखनी है इसके अंदर. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने जो चीजें कंसिडर की, हमने जो चीजें देखी, दैट इज वेब इंजीनियरिंग एक्सटेंड्स टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू वेब बेस्ड एप्लीकेशंस. हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर बेस कर रही हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, फेज हैं, एक्टिविटीज हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की है, डिजाइन की है, डेवलपमेंट की है, इम्प्लीमेंटेशन की है, टेस्टिंग की है, मेंटेनेंस की है, सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है. सो इन्हीं चीजों को जब हम कंसिडर करते हैं किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन की, देन वी आर टॉकिंग अबाउट web engineering. So then we have studied why web engineering, because globally people are communicating through World Wide Web. Users are communicating across the world using World Wide Web. Corporate users, individual users, business organizations, and in different aspects. Education में भी use हो रहा है, banking industry में भी collaboration हो रही है हमारे पास, एयरलाइन इंडस्ट्री में भी यूज हो रही है, गेमिंग के लिए भी यूज हो रही है हमारे पास. सो डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस हैं, वेब इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स हैं. एंड देन वेब एप्लीकेशंस, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस को हमने देखा, डॉक्यूमेंट सेंट्रिक को हमने देखा, स्टैटिक्स कॉन्सेप्ट्स को देखा, डायनेमिक कॉन्सेप्ट्स को देखा, हमने पोर्टल्स को देखा. सो हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं यूजर्स की. और इसके साथ साथ हमने वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में भी देखा कि हमारी डिफरेंट वेब टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हमने कंसिडर किया. HTML के बारे में हम डिटेल में देखेंगे इस कोर्स के अंदर, CSS के बारे में हम बहुत डिटेल में देखेंगे इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट को हम बहुत डिटेल में इसके अंदर देखेंगे, PHP को हम इस कोर्स के अंदर कंसिडर करेंगे. सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू लेक्चर टू यू, सो यू नीड टू कंसिडर इट द फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर, and I hope so you understand the basic concepts about it. Thank you so much.